section formula. Section formula. Now there are two section formula. Already you have seen this one in 11th standard beta, internal section and external section formula. That you have seen it. Even then, let me. So now, सबसे पहले first part I am taking internal section. Internal section formula. So internal section क्या होता है बेटा? ये रहा आपका C listen like this. Like this is O and then C take it P. This is otherwise R like P Q and direction is this and this and P to R M. This is N and then direction is like this. Okay. So if R divides, that is OR vector. If OR divides PQ internally in the division, PQ divides PQ, आप भी लिखो बेटा internally MS to N ratio, internally MS to N ratio, then वो R vector equal to, formula क्या आ जाएगा बेटा? वो R equal to ये B vector, ये A vector डालते हैं, ये small r vector लेते हैं. So OR vector equal to M into OQ vector plus N into OP vector, the whole upon M plus N. So that is equal to, that is simply R vector equal to M into B vector plus N into A vector, the whole upon M plus 1. This is internal section. Now suppose second one, part 2. यही डायग्राम आपका एक्सटर्नल पार्ट में आता है. एक्सटर्नल मतलब जैसे आपका कॉरिडोर आ गया, रूम से लेके लास्ट कॉरिडोर तक कैसे ये दीवार एक्सटर्नली कैसे डिवाइड कर रहा है. आप देखो ये रहा, दिस इज O एंड R यहाँ पे आ जाएगा. ये रहा R, दिस इज P एंड दिस इज Q. डिस्टेंस वही लेंगे, P R के बीच में क्या लेंगे M एंड Q R क्या लेंगे, दैट इज N लेंगे. एंड नाउ डायरेक्शन ये रहा आपके पास. Now this is if here OR vector divides PQ externally in the ratio, PQ vector externally, everybody please write the formula, externally in the ratio MS to N, then so what formula is saying beta? OR vector equal to M into OQ vector minus N into OP vector, the whole upon M minus N. वही लेंगे आप, OP लेंगे A vector and this is B vector and this is R vector. So R vector equal to M into B vector minus N into A vector, the whole upon M minus N. ये external division. In case third one, suppose OR vector divides PQ vector at equal ratio, that is M और N equal हो जाएगा, equal ratio, then OR vector equal to, that is OP vector plus OQ vector, the whole upon M plus N. So that is M plus N मतलब दोनों equal ratio तो 2 आ जाएगा. So ये हो जाएगा बेटे 2 हो जाएगा. So that is equal to A vector plus B vector, the whole upon क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. So there are three formula: internal section, external division, and then equal division. Are you clear what I am saying? Yes, bete? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Please note down. Please note down. Then I will start the exercise.
बेटे राइट फास्ट। If you have written, then tell me better. So just whatever we have seen formulae or definitions, you should remember it so that easily we can cover up the exercise. Have we completed? Yes, ma'am. Yes, better. Now take it 10.2. 10.2C question number 1. Compute magnitude of the following. बेटा magnitude निकालना आता है ना. For example कोई एक पार्ट में करके दिखा देती हूँ. Everybody knows magnitude of बहुत सारा questions करवाया भी है. Even then let me Yes, can do it. Even then मैं एक क्वेश्चन करके जाती हूँ बेटे. Magnitude of एक हाँ बेटे you want to say anything? मैं C magnitude of C vector निकाल रही हूँ. Magnitude of C vector equal to under root of 1 by root 3 का whole square and then plus 1 by root 3. एक पार्ट में करके दिखा देती हूँ, उसके बाद आप कर लेना. This is minus 1 by root 3, तो मतलब ब्रैकेट में आएगा माइनस, गलती से भी बाहर मत निकालना. So that is equal to under root of 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. So that is equal to 1 आ जाएगा like this. So naturally magnitude of C vector कौन सा होगा? Unit vector होगा. C vector is a unit vector. Compute magnitude of following vectors. ये आ गया आपके पास. Understood C vector is a unit vector. Now see बेटा question number 2. Write two different vectors having same magnitude. Two different vectors निकालो. But same magnitude. वही तो collinear में definition देखे थे. So आप two vector इधर देखना. Suppose 2i minus j plus 4k ये ले लिया ना. एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम आना है ना. ये जो कोएफिशिएंट है ना आगे पीछे सेम रखो. इधर देख -4i और प्लस j कैप एंड देन प्लस आई कैन राइट माइनस आर अदरवाइज -2 कैप. बोथ आर डिफरेंट वेक्टर बट डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1 प्लस 4 ये भी आएगा. So that is magnitude of A vector equal to magnitude of B vector equal to under root of 21. But both vectors are different. But both vectors, so इसी तरह 1 मार्क क्वेश्चन में आने के chances है. Both are different vector. Different vector. So next question, अब देखना question number 3 देखना बेटा. Write two different vectors having same direction. डायरेक्शन आप जब सेम होना हो तो उसका जो कोएफिशिएंट है ना उसका नेगेटिव पॉजिटिव सेम होना चाहिए. आई पॉजिटिव ले लिया, यू कैन गिव एग्जांपल. आई पॉजिटिव लिया, यहाँ कुछ भी लो कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है बट साइन शुड बी सेम. ये पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव होना चाहिए. ये पॉजिटिव हो तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो डायरेक्शन सेम हो जाता है उसका. ओके फाइन. अदरवाइज आप लैम्डा वैल्यू निकाल, लैम्डा वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो सेम डायरेक्शन. आप पैरेलल रखना है, कोलिनियर रखना है, वो आपका चॉइस है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. सो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 गिव एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y so that both are. ये 1 मार्क क्वेश्चन में बोर्ड में आए थे बेटा. इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल then its corresponding coefficients are equal. Mind it, if two vectors are equal, they are saying xi cap plus yj cap equal to what they are saying, that is equal to 2i plus 3j. If two vectors are equal, then its corresponding coefficients are equal. So that is equal to क्या आ जाएगा 3. It's so simple question. वैसे आप भी करते हो फिर भी इसलिए कर रही हूँ, आप समझ लें सब कुछ अच्छी तरह. Now see बेटे question number 5. Find scalar and vector components of the vector with the initial point 2, 1 and terminal points given है बेटे. So ये इसकी बस जहाँ पे मैं question number 8 करती हूँ, question number 5 आप कर लेना. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा आपके पास, ये ऑलरेडी मैं करा रखी हूँ बेटे. 1 2 3 और 2 पॉइंट गिवन है आपके पास, दैट इज 4 5 6. नाउ दे आर आस्किंग, क्या पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन. मैं सब कुछ कंपोनेंट सब कुछ निकालती हूँ. सबसे पहले PQ वेक्टर निकालती हूँ. OQ वेक्टर ये रहा, OP वेक्टर ये रहा. OQ माइनस क्या करते हैं OP वेक्टर. सो दैट इज इक्वल टू 4 - 1 into I cap प्लस 5 - 2 into J cap.
एंड देन प्लस 6 माइनस 3 इंटू, जो पहला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया वो 2D है, ये 3D है, 3 कोऑर्डिनेट 3 पॉइंट्स गिवन है. So PQ vector equal to we are getting that is a 3I plus a 3J and then plus क्या आ गया 3K. Now there are के स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स. स्केलर कंपोनेंट्स आएगा आपके पास, स्केलर कंपोनेंट्स आएगा 3 यस. वेक्टर कंपोनेंट्स आएगा आपके पास, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या आएगा बच्चे? सो 3I कैप 3J कैप यस 3K और कैप. क्या पूछ रहे, मैं पूरा ही कर देती हूँ बेटा. इसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या आएगा बच्चे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या आएगा? कैन यू से? इसको 3 से डिवाइड कर दो, 1, 1, 1 यस. डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएगा? मैं पूरा पार्ट इसमें कर लेती हूँ. व्हाट वर दे आर आस्किंग, डायरेक्शन कोसाइंस आएगा दैट इज L इक्वल टू क्या आएगा 1/√10 3 एंड M इक्वल टू क्या आएगा 1/3 एंड N इक्वल टू क्या आएगा 1/3. और उसके बाद क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर दैट इज PQ कैप. ये ना फॉर्मूला बताया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर इक्वल टू PQ कैप इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला बच्चे? PQ कैप इक्वल टू, बोलो बेटे. हाँ जी, PQ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर. बेटे फॉर्मूला आना PQ वेक्टर यस, फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है आपको. कोई भी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना हो, उसका वेक्टर अपॉन दैट मैग्नीट्यूड. आइदर मान लो a प्लस बी प्लस सी, उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालिए a प्लस बी प्लस सी होल कैप इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी. सो कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन पे एक यूनिट वेक्टर निकालना हो, दैट कैप इक्वल टू दैट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. आगे फॉर्मूला आप लोग बताओगे. सो ये आपका PQ वेक्टर तो दे रखा 3I प्लस 3J प्लस 3K एंड देन होल अपॉन अंडर रूट ऑफ ये 3 कॉमन निकाल के बाहर रखना है तो बाद 3√3 आ जाएगा. सो फिर भी आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो वो आपका चॉइस. सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू I प्लस J प्लस K द होल अपॉन क्या आएगा आपका 9 बाहर निकालोगे 3√3. am I करेक्ट? सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो PQ कैप इक्वल टू, सो इसी तरह वो क्वेश्चन भी आप होमवर्क में कर लेना. आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग बच्चे? यस मैम. यस बेटा, नो डाउन नो डाउन. थोड़ा फास्ट करो ये एक्सरसाइज को फिनिश करते. सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है बेटे. क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. Yes, बेटे. No ma'am. Right.
Yes. I'm done. Yes. Now next question number 6 मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देती हूँ बेटा, so that question number 6 आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर गिवन है, फाइंड A प्लस B प्लस C, सम निकालना है। ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A प्लस B प्लस C। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। A प्लस B प्लस C, हाउ टू फाइंड A प्लस B प्लस C, जस्ट एडेड, तीनों वेक्टर को ऐड करना है और कुछ नहीं करना। सो कोएफिशिएंट ऑफ दैट इज 2i, 2 1 1, सो ये 4i क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, अदरवाइज मैं आपको कर देती हूँ 2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू आई का, और यहाँ पे आओगे प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 इंटू जे का, एंड देन प्लस इसमें कोएफिशिएंट देखोगे 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू के का। जस्ट सिंपली ऐड करना है। Usually this is a 4i, we will get and then plus 3j and then this is we will get 5k. So we are getting A plus B plus C vector, sum आ गया। Next they are asking also find unit vector in the direction of A plus B plus C। क्या होगा बेटा फॉर्मूला? Also find unit vector, yes बच्चे, क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटे? ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A प्लस B प्लस C। मैं किसी की डायरेक्शन पे एक यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या बताया, होल कैप इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया बच्चे, A प्लस B प्लस C द होल Magnitude of, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C, magnitude of A. डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला बेटा, किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना हो, बार बार बोल रही हूँ, दैट वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड, बस सिंपल चीज याद रखना और कुछ नहीं। सो A प्लस B प्लस, यहाँ पे वेक्टर सिंबल लगाना है तो लगाओ, दैट इज आपका होल कैप का मतलब अंडरस्टूड है बेटे। सो वो आपका चॉइस है। सो A प्लस B प्लस C का होल कैप दैट इज इक्वल टू दिस, वी हैव 4i प्लस 3j एंड देन प्लस 5k द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 25, इसको ऐड करो, यू विल गेट अ फाइनल आंसर। क्लियर? सो अब देखना बेटे क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में कर लेना, फाइंड सम निकालना, तीनों वेक्टर को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देगा, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर गिवन है, क्या फॉर्मूला लगाओगे? यस बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 बेटे, बहुत सारे बच्चे हैं, बोल सकते हैं बेटे आंसर। हम मैम A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, ये कैप इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। सो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करोगे, वो P वेक्टर गिवन है, वो Q वेक्टर गिवन है। सो फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर, क्या फॉर्मूला लगाओगे? और कोई बताएं प्लीज, बॉयज भी तो है बेटे, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर, क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चे? हम PQ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। बेटा और भी कोई आंसर दे बेटे, कितनी बार पूछूं आप लोगों से। सो PQ कैप इक्वल टू PQ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। नाउ सी कम टू क्वेश्चन नंबर 9, फॉर गिवन टू वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर। यस बेटे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर। Now see, I am taking question number 10. 10th one is one of the most important question, repeated question this one. So 10th question में देखना बेटा क्या दे रखा है, find the unit vector in the direction of 5i minus j plus 2k which has magnitude, इधर देखना, ये रहा आपका, मैं डायग्राम भी ड्रॉ करके दे, सेम डायरेक्शन पे है दोनों। ये दे रखा आपके पास, मान लो ये A वेक्टर गिवन है, सो दैट इज 5i minus j plus 2k। फाइंड ये वेक्टर, बेटा मैं क्वेश्चन दोबारा समझा रही हूँ, फाइंड ये वेक्टर, आपने एक वेक्टर निकालना, मान लो वो B वेक्टर मैं नाम दे देती हूँ। फाइंड B वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसी के डायरेक्शन पे निकालना है, whose magnitude, इसका जो मैग्नीट्यूड है, whose magnitude मतलब जो वेक्टर तुम निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, 8 गिवन है। एनी हाउ अभी आपको एक फॉर्मूला बताया बेटा, कोई भी यूनिट वेक्टर, इधर देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड वेक्टर नॉट यूनिट वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस whose मैग्नीट्यूड, मैंने आपको बोला कोई भी वेक्टर किसी की डायरेक्शन पे निकालना हो उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। एज पर दैट
बी कैप निकाल सकती हूँ बेटा, बी कैप इक्वल टू किसका इक्वल होगा बच्चे, ए कैप का इक्वल होगा, इजंट इट? ये बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. यस, नाउ दैट इज इक्वल टू ए कैप इक्वल टू फॉर्मूला पता है ये, क्योंकि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, सो इसका मतलब बी कैप किसका इक्वल होगा, ए कैप का इक्वल होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, सो दैट इज बी कैप का फॉर्मूला पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि मुझे बी वेक्टर निकालना, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर गिवन है 5i - j + 2k द होल अपॉन √45 + 1 + 4। नाउ दैट इज बी वेक्टर, मुझे तो खाली बी, इसलिए क्वेश्चन में बोला फाइंड ए यूनिट वेक्टर, नहीं बोला फाइंड ए वेक्टर बोला है, सो बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसको उधर साइड लेकर जा रहे हैं बच्चे, 5i - j + 2k द होल अपॉन, सो ये हो जाएगा √30 हो जाएगा, सो दैट इज बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन आपके पास 8 × 5i, आप ओपन करना चाहते हो ओपन करो, बट मैं तो वेक्टर निकाल दिया √30, सो वही बोला है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ हुज मैग्नीट्यूड इज, आपको समझ आया पूरा अच्छी तरह? Yes, ma'am. यस, नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर, Yes, ma'am. यस बेटे क्वेश्चन नंबर 11 देखना बेटे, एक प्रॉब्लम है, फिजिकल एजुकेशन क्लास कुछ बच्चे अटेंड नहीं करते हैं, डजन लुक नाइस बेटे, आपका सिर्फ ओनली अलॉटेड टू यू 5 पीरियड और 4 पीरियड, दैट्स आई डोंट नो, आपका 110 पे यू आर फ्री, व्हाई यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, व्हाई यू आर मिसिंग द क्लास, प्लीज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बच्चे। Now see question number 11, show that the vectors are collinear. कोलिनियर का मतलब आपका ये लैम्डा वैल्यू निकाल के शो करने पड़ेगा बेटा, अदरवाइज एक और फॉर्मूला है आपने 10th में भी पढ़ा होगा, सो a1/b1 = a2/b2 = c2/c1/c2 ऐसे भी दिखा सकते हैं, बट आपका जनरली इजी तरीका सिखा रहे q2i - 3j and then +4k and c vector equal to what is b vector equal to what is given here, b vector equal to that is -4i and then +6j and then क्या देगा -8k, आपको शो करना है इट इज कोलिनियर, सो आपको देख के पता चल रहा है बी वेक्टर से -2 को कॉमन निकालूं, आपको देख के डिसाइड कर सकते हैं बच्चे, सो 2i - 3j प्लस क्या आ जाएगा 4k, सो वी आर गेटिंग b vector equal to -2 into a vector, दिस implies a vector upon b vector करना है करो, सो दैट्स इक्वल टू -2 upon b vector, सो दिस implies लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया -1/2, इसका मतलब a and b are is understood है बेटा, नेगेटिव हो तो मैंने क्या बताया ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो ये दिस implies a vector and b vector are collinear but opposite in direction, ओपिनियन आप प्रॉपर देना चाहते हो तो दे सकते हैं are collinear but opposite in direction, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ दे आस्क यू कैन गिव योर सजेशन, वैसे मैं आपको समझा रही हूँ, पॉजिटिव आ गया सेम डायरेक्शन, नेगेटिव आ गया तो ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके समझ आए बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ आए? Yes, ma'am. यस, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, बेटे डायरेक्शन कोसाइन निकालना आता है ना, डायरेक्शन कोसाइन कैसे Yes, निकालोगे, ma'am. कैसे निकालोगे बेटा? हम कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं बेटे, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ i अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, m इक्वल टू सो क्या आएगा L इक्वल टू 1 अपॉन √1 + 4 + 9 दैट इज 10 14 एंड 1/14 और m आ जाएगा 2/14 एंड n आ जाएगा 3/√14, समझ आ रहे बेटे? Yes, ma'am. यस, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, चलो ये वाला मैं करके दिखा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखना, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए पॉइंट गिवन आपके पास दैट इज 1, 2, -3 एंड देन बी वेक्टर गिवन आपके पास दैट इज -1, -2, 1, सबसे पहले ये बी वेक्टर निकालो, सो ये बी वेक्टर इक्वल टू वही आएगा -1 into i कैप, दिस बी माइनस ये करनी है बच्चे, गलती से भी गलत मत कर देना, -2 j कैप एंड देन 1 + 3 into क्या आ जाएगा k कैप, दैट इज ए बी वेक्टर इक्वल टू आपका फाइनली आ जाएगा -2i -4j एंड देन +4k, कोई कॉमन नंबर बेशक बाहर निकालना हो तो बेशक बाहर निकाल सकते हैं, आपका चॉइस, सो L इक्वल टू -2 अपॉन √, ये हो जाएगा 4 + 16 + 16
सो दैट इज इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 32 36 दैट इज 6 आ जाएगा। सो -2 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू -2 अपॉन क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3 हो जाएगा, -1 अपॉन 3। सो m इक्वल टू क्या आ जाएगा दैट इज आप -2/6 ही रखो सो दैट आपका 6 इसमें कैंसिल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, एनी हाउ ये आ जाएगा -4 अपॉन 6 आ जाएगा बेटा। मैग्नीट्यूड ऑलरेडी निकाल रखे हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे -1/3, इसको सिंप्लीफाई करोगे -2/3 एंड n इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 अपॉन 6 आएगा दैट इज इक्वल टू 2/3। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या आ जाएगा आपके पास -1/3, -2/3, -2/3। बच्चे समझ आ रहे हैं? Yes, note down. Yes, note down बेटे, fast note down fast. बेटे राइट फास्ट। Done, ma'am. Yes, yes. हम थर्ड रो मत रब करना मैम प्लीज। बेटे थोड़ा फास्ट। Done, ma'am. यस बेटे क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले क्वेश्चन सभी पढ़े प्लीज, क्वेश्चन सभी पढ़े मतलब आपको समझ आना जरूरी है। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, एक वेक्टर है मान लो ये रहा आपका ये वेक्टर है, ठीक है। सो दैट इज दिस वेक्टर गिवन है i प्लस जे प्लस के। सो ये मान लो ये वेक्टर दैट इज i प्लस जे प्लस के। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा इजेड एक्सिस, यहाँ पे रखियो वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे। तो ये वेक्टर गिवन आपके पास है i प्लस जे प्लस के। इसको मैं रोटेट करूं, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा अल्फा एंगल, वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा बीटा एंगल, इजेड एक्सिस को क्रॉस करेगा ये गामा एंगल। सो अल्फा बीटा, सो ये जो ए वेक्टर है मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स कमा वाई कमा इजेड एक्सिस। अब एज पर गिवन क्या आपके पास दे रखा है बेटा,
हिंट क्या दे रखा है आपके पास, ये जो ए वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड एंगल दे रखा है. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट, व्हाट इज गिवन, दिस ए वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, वही दे रखा है ना आपके पास, इक्वली इंक्लाइंड. लेट मी रीड द क्वेश्चन. सो दे रखा है बेटा, शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली शो करना है आपको, इक्वली इंक्लाइंड शो करना है. सो क्या शो करोगे, वो इक्वली इंक्लाइंड होगा. सो क्या शो करनी है आपको, टू शो. हाँ बच्चे, क्या शो करोगे वो इक्वली इंक्लाइंड होगा. बेटा बोलो तो सही कुछ. वी हैव टू शो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा. एम आई करेक्ट? सो आपको पता है cos अल्फा इक्वल टू बी से L, बट L एज पर दिस क्वेश्चन आपको निकालना आता है. सो L क्या होगा, 1 upon under root of 1 plus 1 plus 1 that is equal to 1 by root 3, and cos beta we say m that is equal to we have क्या दे रखा है, equally inclined दिखाना है बेटा, वही निकाल रही हूँ. सो 1 upon root 3 आएगा and then cos gamma आ जाएगा that is equal to n. this implies ये भी आ जाएगा 1 by root 3. सो आपको अल्फा, ये तो आप लिखना है, लिखो ना लिखना, मैं तो ये एलिमेंट निकाल दिया. ये देखो एलिमेंट, ये तेरा एलिमेंट, आपको एलिमेंट निकाल दिया. सो दिस इम्प्लाइज आपका n इक्वल टू m इक्वल टू n. सो दिस इम्प्लाइज यू कैन राइट cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा. सो cos थ्रू कैंसिल होगा तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा. बस दिस इज, सो इम्प्लाइज a vector makes an angle, makes equal angle with the equal angle with x comma ox comma oy comma oz axis respectively. बच्चे समझ आए? Say yes no बेटे. Yes ma'am. Yes. Now see next question. So question का मतलब समझ लेना. It is so simple था. Question समझ आना चाहिए. Now see question number 15. Find the position vector of R vector. बेटे मैं समझा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 आप करोगे तो वो आर वेक्टर दे रहा आस्की m/n दे रखा है, m/n इक्वल टू 2:1, और ये वेक्टर गिवन है बच्चे 2:1. ये वेक्टर गिवन आपके पास i प्लस 2j एंड देन माइनस k, एंड b वेक्टर गिवन है आपके पास दैट इज OQ गिवन है, OP वेक्टर गिवन है, एंड देन ये दे रखा है OQ वेक्टर गिवन है आपके पास दैट इज इक्वल टू क्या दे रखा है, -i प्लस j एंड देन प्लस k. इंटरनल डिवीजन भी निकालना है, एक्सटर्नल डिवीजन भी निकालना है. नाउ नंबर 1 इंटरनल डिवीजन. इंटरनल का फॉर्मूला क्या बताया बच्चे, OR वेक्टर इक्वल टू yes m into OQ वेक्टर प्लस n into OP वेक्टर द होल अपॉन m प्लस n. m गिवन है, n गिवन है, OP वेक्टर गिवन है, OQ वेक्टर गिवन है, फॉर्मूला में डालो एंड देन एक्सटर्नल डिवीजन करोगे. एक्सटर्नल में आ जाएगा आपका OR वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, m into OQ वेक्टर माइनस n into OP वेक्टर द होल अपॉन m माइनस n. बच्चे समझ आ रहे बेटे, बोलो. Yes ma'am. यस, ये क्वेश्चन कर पाओगे ना, ये सब कुछ गिवन है बेटे, OP वेक्टर गिवन है, OQ वेक्टर गिवन है, m गिवन है, n गिवन है. जस्ट सीधे फॉर्मूला में डालो, यू विल गेट आंसर. क्लियर टू यू? आप होमवर्क में कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ. और क्वेश्चन नंबर 16 ये भी आप होमवर्क में करोगे. क्वेश्चन नंबर 16 में देखने बेटे, OP वेक्टर गिवन है आपके पास दैट इज इक्वल टू 2i एंड देन प्लस 3j एंड देन प्लस 4k, एंड देन OQ वेक्टर गिवन है आपके पास दैट इज 4i एंड देन प्लस j एंड देन माइनस 2k. दे आर आस्किंग फाइंड पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट पूछ रहे हैं बेटा. सो OR दैट इज m इक्वल टू क्या दे रखा है, n दे रखा है. सो OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर होल अपॉन क्या करोगे, 2. ये भी होमवर्क में कर लोगे, बोलो यार, यस नो बोलो यार. Yes ma'am. यस. सो क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में कर लेना बेटा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17. लेट मी हाँ मैम टाइम नहीं बचा. सी लेटर ऑन बेटा, 17 वी विल सी लेटर ऑन. ठीक है, इतना नोट डाउन करो, ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट. सो इतना नोट डाउन करो. सो कल न्यू टॉपिक इंट्रोडक्शन होगा, डॉट प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन क्लास, कभी कोई मिस मत करना. और दूसरी बात आपको बताया, प्लीज डू नॉट मिस द फिजिकल एजुकेशन क्लास, डजंट लुक नाइस बेटे, क्योंकि आपकी क्लास टीचर को बोला इफ यू आर नॉट अटेंडिंग देन दे विल रिमूव फ्रॉम क्लासेस. सो बी अलर्ट एवरीवन.
और CBSE बोर्ड स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर बताया. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन विजिट CBSE website. Thank you.